افسانہ ایک خط جس سے زندگی بدلی تحریر حفیظ اللہ خان۔ ان کا پورا نام تو منیر غلام مجتبیٰ خان ہے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے میں اسے صرف منیر ہی لکھوں گا۔ جی ہاں، منیر کی پیدائش تو صوبائی دارالحکومت میں ہوئی تھی۔ پیدائش پر گھر میں ہر طرف خوشی تھی، دستور کے مطابق پٹاخے بھی چلے تھے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، مہمانوں کے لیے خوراک اور راحت کی خدمات فراہم کی گئی تھی۔ دادا اور والد نے مشورے سے ان کا نام منیر غلام مجتبیٰ خان رکھا۔ دادا دینی علوم میں اچھے نام رکھتے تھے، جبکہ والد عصری علوم میں، اسی لیے نام میں دونوں کلمات کے اثرات موجود ہیں۔ منیر نے پنگوڑے سے گود اور گود سے چل قدمی کا سفر طے کیا۔ اب مما پاپا بھی سیکھ چکا تھا، مامتا کی گود میں سلامتی اور محبت محسوس ہوتی تھی۔ صحت اچھی تھی کیونکہ اس وقت ڈبے والا دودھ کا رواج شروع نہیں ہوا تھا۔ یوں بچپن کی شیر خارگی کی عمر گزر گئی۔ اب منیر کی عمر محض 6 سال ہوئی تو قصبہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں والد نے انہیں داخل کروایا۔ قریب ایک اور سرکاری سکول بھی تھا، نجی تعلیمی اداروں کا آج کل کی طرح برمار نہیں تھی۔ یہ سکول گھر سے تقریباً 20 منٹ پیدل سفر کی مسافت پر تھا۔ سکول کا ہیڈ ماسٹر طالع محمد ککڑ صاحب تھے۔ منیر کے والد نے کافی بات چیت کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب کو قائل کیا کہ میرا بیٹا اسی ادارے میں پڑھے گا، اور منیر کو داخلہ مل گیا۔ سکول میں 12 کمرے تھے، ہر جماعت کے 2 فریق ہوتے تھے، کھلا صحن اور ایک 2 فٹ اونچا چبوترا۔ چبوترے کے کونے پر لوہے کا بڑا اونچا پائپ، جس پر ہر روز دوران اسمبلی قومی پرچم لہرایا جاتا تھا۔ اسمبلی کی شروعات تلاوت قرآن مجید سے ہوتی تھی، قومی ترانہ، بچوں کی دعا اور 6 کلمے پڑھائے جاتے۔ تب ہیڈ ماسٹر مختصر اصلاحی بیان کرتے۔ منیر کا کلاس انچارج صلاح الدین صاحب تھے، وہ اپنے طلبہ سے بڑی شفقت کرتے اور بچوں کے لیے کمرہ جماعت میں 2 تختہ سیاہ لگائے تھے، ایک پر حروف تہجی اور دوسرے پر گنتی لکھتے تھے تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو اور الفاظ بھی واضح اور بڑے ہو۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ بات میں واضح کر دوں کہ اگر آپ نے آج بھی ایڈ کیا ہے یا اس کا نصاب دیکھا ہے، اس وقت کے معلمین اس کتابی صفت کے مالک ہوتے تھے۔ پڑھانے کا ایک بہت ہی عمدہ ڈھنگ تھا، پہلے خود پڑھاتے، پھر طلبہ کو گروپوں میں بیٹھتی اور ہر گروپ پر نظر رکھتے، غرض کے بچوں کو سبق یاد کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یوں جب امتحان شروع ہوتا تو 2 اساتذہ مل کے بچوں سے سبق سنتے، یہ سب کچھ ہیڈ ماسٹر کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ سالانہ یوم نتائج تو قابل طلبہ کے لیے عید سے کم نہ ہوتا۔ اسمبلی کے بعد چبوترے اور ٹیبل رکھے جاتے اور ان پر سفید اور گولڈن رنگ کے سٹیل کپ رکھے جاتے۔ پرنسپل صاحب ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم کا نام لے کر تو پورے سکول کے طلبہ تالیاں بجاتے اور طالب علم اس تالیوں کی گونج میں اپنا انعام وصول کرتا، جبکہ باقی کامیاب اور ناکام طلبہ کو کلاسوں میں نتائج کارڈ ملتا تھا۔ منیر جب اپنے کلاس میں پہلی دفعہ اول آیا، تواس پہلی کامیابی پر انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پیر زمین پر نہیں لگتے بلکہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ گھر جا کر اس نے گھر والوں کو چمکتا ہوا کپ جب دکھایا تو ماں نے اسے بہت ساری الفت دی، جبکہ بڑے بھائی نے اسے 1 روپیہ نقد کاغذ کا نوٹ بطور انعام دیا۔ صبح وقت پر سکول پہنچنا، وردی، بوٹ، بال اور صفائی پی ٹی ماسٹر روز روز چیک کرتے تھے۔ سکول سے گھر آ کر منیر باقی دوستوں کے ساتھ مل کر چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کرتا تھا، کبھی کسی ہمسائے کی گھنٹی بجا کر بھاگ جاتا تھا، کسی کے گھر میں گھس کر ان کے تالاب کا نل کے کھول کر رفو چکر ہوتا تھا۔ چھٹی کے دن فیملی پارک جا کر وہاں مالی سے چپ چپ کر پھول توڑ کر گھر لاتا۔ جب شکایت کی بات ان کی ابا جان تک پہنچتی تو وہ مارنے کی بجائے سمجھانے پر زیادہ زور دیتے۔ سب سے زیادہ مزہ تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے والد سب کو جا کر گاؤں لے جاتے تھے۔ 75 میل ٹرین کا سفر، پھر 28 میل گاڑی میں سیاحت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ رات کو تاروں کی چمکتی روشنی اور صاف آسمان تلے استراحت، وہاں یہ شہری بچے دن بھر درختوں پر چڑھنے سے تھکتے نہیں رہتے، قریبی ندی میں مچھلیوں کا شکار کرتے، پھندے سے پرندے پکڑ لیتے اور ان کے پروں کو سبز اور سرخ سیاہی سے رنگدار کر کے پھر آزاد کر دیتے۔ گاؤں میں صبح سورج کی خنک سفیدی جب زمین کو چھو لگتی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ فصلوں کی خوشبو فضا کو معطر کرتی تھی، تب تازہ دودھ اور مکھن کا ناشتہ، اور یوں چھٹیاں ختم ہوتیں اور پھر واپس شہر کی تنگ گلیوں کی زندگی شروع ہوتی۔ ایک دن پرائمری کے کلاس انچارج شادر شاہ صاحب نے ایک طالب علم سے یہ سوال پوچھا کہ پڑھنے کے بعد کیا بنو گے؟ طلبہ میں سے کسی نے استاد، کسی نے ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر، وکیل بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب منیر کی باری آئی تو استاد نے پوچھا، منیر بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ منیر نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے بلند کیا، ذرا اونچی آواز سے کہا، سر جی، فائٹر پائلٹ انشاء اللہ۔
इसी तरह उस्ताद ने तमाम बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि शाबाश बच्चों, इसी तरह मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। मुनीर पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते। स्काउटिंग की तरबियत में गोल्ड मेडल हासिल की। खत्ताती के शोबे में खत्तात मशरिक खुर्शीद आलम गोहर साहिब से सनद हासिल की और तकारीर के भी बड़े माहिर बन गए थे। स्कूलिंग का सिलसिला जारी था। यूं मुनीर ने एंट्रेंस का इम्तिहान भी पास। अब मुनीर के पास लड़ाका हुआ बाज के इम्तिहान के लिए सिर्फ 2 साल और तालीम की ज़रूरत थी, क्योंकि इस प्रोफेशन से इसे अज हद शौक था, बल्कि जुनून रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी, सूबे में तालीमी लिहाज से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और अपने फैकल्टी ऑफ साइंस FSC प्री इंजीनियरिंग अपने लिए मुंतखब किया। इस कॉलेज की तो ये ख़ास खूबी भी थी कि यहाँ के तलबा सूबे में नुमाया पोजीशन पर आते थे। कॉलेज के अंदर एक बड़ा ब्राउन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर गोल्डन कलर से इन तलबा के अस्मा कंदा थे जिन्होंने सूबा और कॉलेज को टॉप किया था। अब आप अक्सर पर उन तलबा के नाम पढ़ते जो अब पाक फ़िज़ाइया या दूसरे इदारों में ऑफिसर थे, क्योंकि मुनीर को जल्दी थी कि कब वो भी पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बने। कॉलेज के लाइब्रेरी से वो किताबें ले जाते जो अफ़वाज पाकिस्तान की तारीख़ के मुताल्लिक़ थी। मुल्की तारीख़ हक़ाइक़ के मुदीर इनायत अल्लाह की किताबें, लाहौर की दीलीज़ पर पाक फ़िज़ाइया के दास्तान शुजात, 10 निशान हैदर, गरज़ नसीम हिजाज़ी, डॉक्टर हारून अल रशीद तबस्सुम, मस्तनज़र हुसैन तारा, सफदर महमूद और ओरिया मकबूल जान की तसानीफ़, इस तरह की लिखी गई किताबें उन्होंने सफ़हा सफ़हा खंगाला था। अब उन्हें MA जिना रोड पर वाक़े PAF सिलेक्शन सेंटर का PTCL फ़ोन नंबर ज़बानी याद था, क्योंकि वहाँ जाना उनके दनियाई फ़राइज़ में शामिल हुआ था और साथ साथ GD पायलट हर कोर्स के आने से बाखबर रहता था। आखिर वो घड़ी भी आ ही गई कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने FSC रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया और कॉलेज हज़ा प्री मेडिकल के तालिब इल्म ने सूबा भर में पहली पोजीशन हासिल की और कॉलेज के तमाम तलबा कामयाब करार पाए। यहाँ उनके तमाम हम जमात दोस्तों ने अपने अपने लिए प्रोफेशन के रास्ते अलग किए। अक्सरियत ने मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों का रुख किया, पर मुनीर ने तो इस दिन के लिए सालों का इंतज़ार किया था। अब तो वक्त ही था महबूब से गिले मिलने। अब पाक फ़िज़ाइया में नया GDP कोर्स आने को 2.5 माह का वक्त था और अपने इब्तिदाई इम्तिहान की तैयारी शुरू की। वक्त चूँकि बाकी था कोर्स के लिए, तो घर वालों और कुछ दोस्तों ने उन्हें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का मशवरा दिया। ये बात मुनीर के लिए बड़ी अजनबी लगती थी कि मैं कहाँ और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कहाँ। मेरी आशियाना तो PF एकेडमी रिसालपुर है, रिसालपुर। आपने अपने कमरे में MM आलम, सरफराज रफ़ीक शहीद की तस्वीरें लगाई थीं। चाहत वाकई कुछ ज़्यादा थी, लेकिन फैमिली के ज़्यादा इसरार पर खुशदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़िलई कोटा पर इम्तिहान दिया और उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में कामयाबी मिली। इस कामयाबी पर अपने घर वालों से सिर्फ ये कहा कि मुझ में सीट लेने का दम है, लेकिन इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन नहीं बन सकता। अपने तसल्ली से घर वालों को समझाया कि मुझे कॉरल पहनने के बगैर कभी सुकून नहीं आएगा। देखें, मुझे इस वक्त मुल्क में फ़िज़ाइया के जितने स्क्वाड्रन हैं, एक एक का इल्म है कि F16 किस स्क्वाड्रन में है, F6 कहाँ है और F7 PG के कितने स्क्वाड्रन हैं, JF17 ते निडर की स्पीड कितनी है। मुनीर कुछ जज्बाती हो गए कि देखें, 1965 में पाक फ़िज़ाइया के पास सिर्फ एक 3-4 लड़का बम्बार तैयारे थे, 98 सीबर, 24 बम्बार अभी 57 और 12 सटर फाइटर थे, जबकि हिंदुस्तान के पास 600 जाअज़ थे। इसमें मग 21 अरे भी थे, जिन्हें इस वक्त फ़िज़ा की दहशत कहा जाता था। इस रात घर के सहन में तमाम अफराद लालटेन की रोशनी में एक दायरे में बैठे हुए थे। मुनीर की उन बातों से घर वालों को इल्म हुआ कि बंदा कुछ ज़्यादा जुनूनी है, लिहाजा इसे अपनी ख्वाहिश की तकमील दी जाए। जबकि वालिद साहिब ने एक बात इजाफा की, मुनीर बेटे, कुछ कामों में तकदीर का भी बड़ा हाथ होता है, आप उसके साथ साथ कोई दूसरी चॉइस भी रखें। मुनीर, अब्बाजान, मुझे तकदीर पर पूरा यकीन है। हाँ, जो दुरुस्त समत में मेहनत करेगा तकदीर उसका साथ देगा। अब मैं खुद को एक लड़ाका हुआ बाज तसव्वुर करता हूँ। मुझे सिर्फ एक खत यानी कॉल लीटर की देर है, बाकी मेरी तैयारी मुकम्मल है। कल का सूरज जब तुलू हुआ तो मुनीर ने PAF सिलेक्शन सेंटर में नए GDP कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रोल नंबर स्लिप जारी किया गया, जबकि 2 दिन बाद उनका इम्तिहान था।
एक लड़ाका हुआ बाज का इब्तदाई इम्तिहान इंटेलिजेंस टेस्ट फिजिक्स और इंग्लिश पर मुश्तमिल होता है। मुनीर को चूंकि फ़िज़ाइया से दिली लगाव था, ज़हनी तैयार और तैयारी मुकम्मल थी, तो अपना इब्तदाई टेस्ट बहुत ही आसानी से पास किया। उनका तबई मुआयना किया गया, इसमें भी फिट करार दिया गया। अब इब्तदाई इंटरव्यू रहती थी अगले दिन। अब इंटरव्यू के लिए आए इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रेहान बैग थे। तारुफ के बाद जब मुनीर से सवालात पूछे गए तो मुनीर ने हर एक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। यूं इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर शायद जान गए कि बंदा वाकई बड़ी तैयारी और उम्मीदों के साथ आया है और ओहदे की शराइत पर भी पूरा उतरता है। लिहाजा मुनीर को इंटरव्यू में पास कर दिया और अगले इम्तिहान के लिए अच्छी तैयारी की तजवीज़ भी दी और कहा, मैं चाहता हूं कि फ़िज़ाइया में अब जैसे जवान आ जाएं। बेस्ट ऑफ लक कहकर मुनीर को रुखसत का। अब मुनीर के लिए एक और इम्तिहान देना बाकी था। इम्तिहान वही इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अफवाज पाकिस्तान में तमाम ऑफिसरान को ये इम्तिहान देना पड़ता है। एक तरफ तो ये बड़ा आसान इम्तिहान है, दूसरी तरफ बाल की खाल उतारना पड़ता है। बतौर जनरल नॉलेज ISSB के बारे में मैं आपको कुछ मालूमात दूंगा। ये मुसलसल 5 दिन का इम्तिहान होता है। ये इम्तिहान कोहाट, गुजरावाला, मलीर और क्वेटा में मुनक़िद किए जाते हैं। तमाम उम्मीदवारान अपने साथ सफ़ेद शर्ट, जरबे, ट्रैक सूट और अपने ताल्लुम असनाद वगैरह ले जाते हैं। वहाँ मोबाइल कैमरा, वीडियो आलात वगैरह पर पाबंदी है। पहुँचने वाले दिन तमाम उम्मीदवारों के पहुँचने पर हॉल में जमा किया जाता है। उनके तमाम तालीमी असनाद चेक किए जाते हैं और उम्मीदवारों की छोटी साइज़ तस्वीरें ली जाती हैं। इंतज़ामिया की जानिब से खिताब किया जाता है और कुछ अहम फॉर्म्स पर किए जाते हैं। पहले दिन डिप्टी प्रेसिडेंट खिताब करते हैं, तब इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। दूसरे दिन मुख्तसर बयान के बाद इनडोर टास्क, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग वगैरह होते हैं। तीसरे दिन इनफरादी ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और इंटरव्यू की जाती। रात का पिछला पहर था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुनीर और साथी हवाबाजों की ड्यूटी ADA एयर डिफेंस अलर्ट में लगी थी। तमाम हवाबाज कोर अल और जी सूट में मलबूस थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट असद खान काकड़ बचपन के दोस्त और कोर्स मिट थे। वो बाकी हवाबाजों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थे। मुनीर ने बटमैन से अपने लिए चाय का कप मंगवाया। कड़क चाय तो उनकी कमजोरी थी और चाय का कप उठाया जैसे ही मुंह से लगाना था, एकदम सायरन बजी। मुनीर ने चाय का प्याला बड़ी तेजी से होंठों से दूर किया, जैसे चाय नहीं जहर का प्याला हो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुनीर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट असद खान काकड़ रनवे की तरफ बिजली की तरह दौड़ पड़े। रनवे पर 2-7 PG जहाज ग्राउंड क्रू ने तैयार खड़े किए थे। दोनों जल्द ही अपने अपने काकपिटों में बैठ गए, हेलमेट पहने और इस अंधेरी रात में उड़ान भर ली और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुंसलिक किया। ATC वालों ने उन्हें कहा कि साउथ साइड से 4 जहाज मुसलसल हमारे मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों शानों ने जहाज को उसी समत मोड़ लिए और अपनी स्पीड बढ़ा दी। दोनों हुआबाजों का खून खोल रहा था, बल्कि वो वक्त आ पहुंचा था जिसके लिए उन्होंने पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की थी और जिसे PF एकेडमी रिसालपुर ने उन्हें तरबियत दी थी। ये वक्त था जज्बा जिहाद और हुब अलवतानी का। आगे किया मंजर था कि चांदनी में उन्हें 4 धब्बे नजर आए। ये 4 धब्बे नहीं बल्कि दुश्मन के 2 मैग 21 और 2 राफेल जहाज हैं। 20 mm की गोलियों का बौछार कर रहे हैं, जो खुली फिजा में एक लंबी रस्सी की तरह मालूम होती थी। फला लेफ्टिनेंट मुनीर और उसका नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट असद खान काकड़ दाएं जानिब मोड़ गए ताकि दुश्मन के जहाज़ों का पीछा कर सके। मुनीर ने अपने साथी को तेल की फालतू टीनकियां फेंक देने को कहा। दुश्मन के जहाज़ बिल्कुल मुतवाज़ी लेकिन समत मुखालिफ था। साथ ही मुनीर के नंबर 2 ने कहा कि सर, योर टेल इज़ कल, योर टेल इज़ क्लियर। अब मुनीर ने तेज़ी से पिंतरा बदला और एक मग जहाज़ के पीछे हो गया। मुनीर ने छोटा सा बरस्ट कर दिया जो सीधा मैग में लगा और मैग नीचे ज़मीन की तरफ गिरा। अब डोग फाइटिंग 3 और 2 की जारी थी और ये गोल दायरे में एक दूसरे पर झपटे की कोशिश कर रहे थे और फिज़ा फायरिंग से लरज़ रही थी। अब एक राफेल जहाज कोई 2000 फुट के फासले पर मुनीर के पीछे तेजी से जा रहा था। राफेल की रफ्तार चूंकि F7 से ज़्यादा है, इसकी रफ्तार से काकड़ को पता चला कि इसने मुनीर को शिस्त साइट में ले रखा है। काकड़ वायरलेस पर चला, लीडर दाएं को हो जा। मुनीर ने पलक जपेकती में जहाज को दाएं मोड़ा और राफेल की स्पीड चूंकि ज़्यादा थी आगे निकल गया। मुनीर ने पिंतरा बदला और राफेल जहाज के पीछे हो गया। शिस्त में लेने के बाद PL
2 मिसाइल से टारगेट किया जिससे पायलट को एजुकेशन की मोहलत तक ना मिली और जहाज आग के शोलों में तब्दील हुआ। दूसरी तरफ दुश्मन का एक राफेल जहाज काकड़ का ताक़ुब कर रहा था। काकड़ ने इसकी जद से बचने के लिए अपने जहाज को पीछे की तरफ कलाबाजी लगा दी। इसका जहाज ऊपर उठा और उल्टा होकर पीछे आया। अब दुश्मन का जहाज इसके नीचे से आगे निकल गया। तब बड़ी आसानी से काकड़ का शिकार बन गया। पाक फिजाइया के ये शाहीन फिजा में एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। अब 2 F-7PG और एक मैग फिजा में लड़ रहे थे। ये तीनों लड़ते लड़ते ज़मीन से 1,500 फुट बुलंदी तक आ गए और ये बुलंदी तेज़ी से कम हो रही थी। एकदम दुश्मन के हवाबाज जंग से मुंह मोड़ गया और मरका से दस्तबरदार हो गया और मुल्की किसी अड्डे का रुख किया। ये सब कुछ दुश्मन की फिजा में हो रही थी। मुनीर और साथी पहले ही से फालतू टीनकियां ड्रॉप टैंकर्स फेंक चुके थे। जब देखा तो उनके पास फ्यूल भी खत्म हो रहा था तो अपने मुल्क की तरफ जहाज मोड़ लिए। यहाँ जब रनवे पर लैंड किया तो 20 कमांडर एयर कमोडोर मोहम्मद अली खान अचकजई ग्राउंड क्रियो सब उनके मुंतज़िर थे। काकपिट से उतरते ही उन शाहीनों को कंधों पर उठाया गया और नारा तकबीर बुलंद किया। इतने में मुनीर को वालिदा की आवाज़ सुनाई दी, मुनीर बेटा सुबह सादिक हो गई, नमाज की तैयारी कर। मुनीर ने आंखें खोली और कलिमा पढ़ा और दिल ही में खुदा से दुआ की कि अल्लाह तो कर ऐसा ही हो। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मुनीर को अब एक कैटन इम्तिहान से गुजरना बाकी था, वो था ISSB का इम्तिहान। मुनीर को प्री ISSB ट्रेनिंग में स्क्वाड्रन लीडर अफान नियाजी उन्हें PG पायलट के नाम से पुकारते थे। मुनीर का ISSB लीटर भी आया जो 1 मार्च से 5 मार्च तक उनका इम्तिहान था। मुनीर ने वालिदा से रुखसत होते कहा, उम्मी मुझे अब से उम्रे का वदा याद है। इंशाअल्लाह इस कामयाबी के बाद आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। अब बड़े ठंडे दिमाग और बड़े दिल से ISSB सेंटर पहुंचे। इस्तकबालिया में लाजमी कागजात दिखाने के बाद आपको रूम में बेड और अलमारी अलाट किया गया। 5 दिन दौरान इम्तिहान में उनको सब कुछ आसान मालूम होता था क्योंकि उनका फार्मूला था कि सख्त सिखाई आसान लड़ाई। अपने पहले ही से खूब तैयारी की थी, वो बड़े मुतमईन थे। इम्तिहान से फारिग होकर 7 मार्च दोपहर 2 बजे डाकिया ने उनके पते पर उनका रिजल्ट पहुंचाया। आपको ख़त का बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था। जब लिफाफा मौसूल किया तो दिल की धड़कन तेज़ होता जा रहा था। लिफाफा खोला और ख़त देखा तो ख़त में नॉट रिकमेंडेड लिखा था। उनकी पाँव से ज़मीन निकल गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनसे ये लफ्ज़ पढ़ा नहीं जा रहा था। आंखों पर अंधेरा छा गया। इसे ये लिखाई धुंधला सा मालूम होता था। अब फर्श पर बैठ गए क्योंकि सर चकरा रहा था। उनके कानों में शोर शुरू हुआ था। अब तो उनमें खड़े होने और चलने की तौफीक भी ना थी। मुनीर ने ख्वाबों की जो दुनिया बसाई थी वो वीरान हो गई। इसमें शायद इसकी भी गलती थी क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा था। इसने तो बस इस एक मनसब पाने के लिए अपनी कश्तियाँ जलाई थीं। अब उसे दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र न आ रही थी, जैसे तपती रेत में एक अजनबी मुसाफिर रास्ता भटक चुका हो। दिन रात, हफ्ते, महीने और साल गुजर गया, तब भी इसके अनदेखे ज़ख्मों से खून टपक रहा था। उनका ये साल ज़ाय हुआ क्योंकि अपने BSc का सालाना इम्तिहान न दिया। दोस्तों रिश्तेदारों के राय सुनने के बाद अब सिर्फ ये कहते कि अब तो मंजिल ही ना रहा, मैं रास्ते का क्या करूं। अगले साल तालीमी सिलसिला रंजीदा दिल्ली से जारी रखा। चलते चलते पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम महज 55% से पास किया। जिसका आशियाना ना हो वो मुलाजमत किया खाक करेगा। कभी इम्तिहान में नाकाम होते और कभी इंटरव्यू में गुजर बसर के लिए निजी इदारों में मुख्तसर दौरानिया के लिए मुलाजमत करते रहे और अक्सर तन्हा और खामोश रहते। बुझे हुए दिल का हाल कोरे कागज़ों पर लिखते। हाँ गाबग्गा बाज़ अखबारों में इंशा पर्दाजी भी करते जिससे इन्हें अखबारों के मुदीरों से रावरसिम भी पैदा हुई थी। 15 फरवरी शाम 5 बजे नज़रिया पाकिस्तान दफ्तर लाहौर से उन्हें कॉल आई कि 21 फरवरी को बैन अल-अक़वामी यौम मादरी ज़बान का दिन मनाया जाता है जिसमें मुल्क के बड़े मोतबर शख्सियात खिताब करेंगे। लिहाजा मुनीर भाई आपका नाम भी मुकर्ररीन की लिस्ट में शामिल है। अब की हाज़िरी हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। मुनीर ने जान खलासी की काफ़ी सही की लेकिन दफ्तर वालों के बहुत इसरार से अपने तकरीब में हिस्सा लेने का वदा किया और दिल ही में सोचा कि इसी बहाने हकीम अल-उम्मत शायर मशरिक रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र पर फातिहा पढ़ने का मौका भी मिलेगा। 17 फरवरी को अब बजरिया ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हुए। सीटी बजी 5 बजे ट्रेन चलने लगी। ट्रेन का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मुनीर के साथ वाली सीट पर एक रिटायर्ड JDM मास्टर बैठा था जो अपने पेंशन के सिलसिले में बलूचिस्तान आया था। सामने वाले सीट पर एक बुजुर्ग बाबा जी थे जो अपने फ़ोन पर किसी आलम का तकरीर सुन रहे थे। ट्रेन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी। ट्रेन शहर से काफ़ी दूर जा चुकी थी। मुनीर अपने मोबाइल के गैलरी में पुरानी तस्वीरें देख रहा था
اور ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ اتنے میں ٹی ٹی آئے اور مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے لگے۔ منیر نے موبائل گود میں رکھا اور جیب سے چمڑے والا پرس نکالا جس پر ایک طرف PAF لکھا تھا اور دوسری طرف پاک فضائیہ کا لوگو بنا ہوا تھا۔ ایک دم ایک زور دھماکہ ہوا، مٹی کا طوفان اٹھا، ٹرین کے ڈبے پٹری سے اتر گئیں، ہر طرف چیخ و پکار تھی، بچے بوڑھے جوان سب مسافر کھڑا رہے تھے۔ باقی ڈبوں کے مسافر جو ہوش میں تھے وہ خود تگ و دو کر رہے تھے، کھڑکیوں اور دروازوں سے نکل رہے تھے، ورنہ آدھے سے زیادہ مسافر تو غنودگی کی حالت میں پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اور تمام انتظامیہ کے نفری اور سکاؤٹس کی ٹیمیں پہنچ گئیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھا رہی تھیں، زخمیوں کو نکال لے جا رہے تھے۔ قریبی سول ہسپتال میں بیڈ کم پڑ گئے تو زخمیوں کو فرش پر ابتدائی طبی امداد دی جا رہی تھی۔ جب منیر کو ہسپتال پہنچایا گیا تو ان کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میڈیا پر خبریں چلنے لگیں، لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ منیر کی لاش ہسپتال کے ساتھ سرخانے میں رکھی گئی کیونکہ ان کی شناخت کے لیے نہ ان کے پاس فون رہ گیا تھا نہ بٹوا تھا، ہاں ان کی جیب سے تسبیح اور ایک پرچی ملی جس پر بڑے خوبصورت انداز میں اقبال کا اس شعر کی کتابت کی گئی تھی: زدبانگ کے شاہینم وکرم با زمین چیست، لیکن دوسرا بند ان کی خون سے اتنا آلود ہو چکا تھا کہ پڑھا نہیں جاتا۔ اگلے دن زمیندار اخبار میں واقعے کی تفصیل درج تھی اور یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ ہسپتال میں ایک لاوارث لاش کی تعین نہ ہو سکی۔ منیر کی لاش گاؤں لائی گئی، اس کا جسم زخموں سے چور چور تھا، جبکہ سینے پر ذرا بائیں جانب 4 انچ بڑا اور گہرا زخم تھا جس سے اب بھی خون آہستہ آہستہ ٹپک رہا تھا۔ ان کی شاہینی 2 نین بند تھی، اس کی تابوت پر قومی پرچم تھا، نہ کسی فضائی کے دستے میں انہیں سلامی دی۔ آج قبرستان کے ایک گمنام اور کچی قبر میں منو نوٹی تلے مدفون ہے۔ قبر کے کتبے پر تسمیہ اور شہادت کے بعد یہ شعر لکھا ہے: صحرا ست کے دریست تہبال او پرماست۔